اور ساری عمر سارا جلال ہم خداوند اپنے خدا کے نام کو دیتے ہیں، چونکہ وہی جلال کا بادشاہ، وہی رب الافواج ہے جو عزت ستائش تمجید اور نزول کے کرائے گا۔ آمین آمین۔ ہم سب جانتے ہیں آج کا دن عید پینتیکوست کا دن ہے، آمین۔ آج کے دن وہ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ آج کے دن وہ وعدہ جو ہے وہ بنی نوع انسان کے ساتھ پورا ہوتا ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے، یعنی روح حق۔ پریز گاڈ۔ آپ سب کو عید پینتیکوست جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ آمین آمین۔ تو خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم یاد ہے کسی کو کیا سیکھا تھا؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع۔ آمین، پریز گاڈ۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ آمین۔ The attitude that Jesus Christ had۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے tongues of fire۔ آمین آمین۔ آگ کی سی زبانیں۔ سو خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بک آف ایکٹس، اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اور اس کی پہلی 4 آیات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف پڑھیں، کتنے ہیں جن کے پاس بائبلز ہیں اپنی؟ پریز گاڈ، ذرا ہاللیلویا۔ ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کوشش کیا کریں کہ آپ جب خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو اس کلام کو، جس کے لکھا ہے تیرا کلام میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے، اس روشنی کو آپ اپنے ساتھ لے کر آیا کریں۔ آمین آمین۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے اگر جن کے پاس نہیں ہے، ویسے تو آپ کے پاس موبائل میں بھی ہے، ادروائز جن کے پاس نہیں، آپ انگلش میں جو بچے پڑھتے ہیں، یوتھ کے بچے اگر بائبلز ہیں تو ویل ڈن، ادروائز جو بیٹے بیٹیاں، جو بہن بھائی جن کے پاس نہیں، آپ اسکرین پہ جو بائبل جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورس 1 to 4، اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین کی آواز کام ہے، پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں یہ ریفرنس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس ریفرنس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ آمین۔ موسٹ آف دا ٹائم جب عید پینتیکوست کا دن جو ہے وہ آتا ہے تو زیادہ تر بات جو ہے وہ ادر ٹنگز یا غیر زبانوں کے متعلق جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آمین آمین۔ سو آج ہم جو ہے وہ غیر زبانوں سے ہٹ کے جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں گے اسی ریفرنس میں سے۔ آمین۔ کیونکہ موسٹ آف زیادہ تر کلیسیاؤں کے اندر، چرچز کے اندر ہاٹ ٹاپک
गैर ज़बानों को जो है वो लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैर ज़बानों से पाक कलाम बताता है कि वो भर गए और उन्होंने रूह कुदस की ताकत को रिसीव किया। आमीन। तो यस, जब रूह कुदस जो है वो आकर उन पर ठहरा तो गैर ज़बानें जो है वो उन पर आई। दिस इज द वन ऑफ ब्लेसिंग, वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। सो जिस तरह से खुदा उनके पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदा के पाक रूह के फल भी हैं और रूह की नेमतें भी हैं। आमीन। सो मेरे अजीज लोग, जब मैं इस रेफरेंस पर गौर कर रहा था, जो टॉपिक आज का खुदा ने मुझे दिया, टंग ऑफ फायर, कि रूह कुदस जो है वो आग ही की जुबानों में उन पर क्यों नाजिल हुआ। आमीन। कभी आपने सोचा है कि आग ही की सूरत के अंदर रूह कुदस जो है वो क्यों नाजिल हुआ? क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी का पानी मैं हूं। आमीन। हम जब उस औरत को देखते हैं जो सामरिया में है और खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू मुझे क्या कर, पानी पिला। तो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांगता है, या अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जिससे तू पीकर फिर कभी प्यासी ना होती, क्योंकि जिंदगी का पानी मैं हूं। तो रूह कुदस जो है वो पानी की सूरत में क्यों नाजिल नहीं हुआ? इसी तरह से जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। मेरे दोस्तों, जब आप बियाबान के अंदर कौम बनी इस्राएल चल रही थी तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर खुदा ने अपने लोगों के लिए आसमान से फरिश्तों की खुराक मन जो है वो बरसाया, और लोग जो है वो उस मन को खाकर शेर हुए। तो रूह कुदस मन की सूरत में क्यों नहीं आया, या उस रोटी की सूरत में क्यों नहीं आया? क्यों सिर्फ वो आग ही की सूरत में आया? मेरे दोस्त, हमारा खुदा जो जिंदगी का पानी भी है, जो जिंदगी की रोटी भी है, खुदावंद के अंदर जो है वो लॉट ऑफ क्वालिटीज हैं। आग को जब हम देखते हैं तो मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से आप देख सकते हैं बुक ऑफ हिब्रू, जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम हमेशा शेयर कर सकते हैं। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29, पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 12वां बाब और उसकी 29वीं आयत। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29। अगर आपने निकाल लिया तो आमीन कह सकते हैं। प्रेज गॉड। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29। सबने निकाल लिया है? आमीन। यहां पर लिखा है क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन। हमारा खुदा क्या है? भस्म करने वाली आग है। इसलिए जब हम खुदावंद के पाक रूह को देखते हैं कि खुदावंद का पाक रूह जो है वो आग की फटती हुई जुबानों में क्यों उन पर नाजिल हुआ, क्योंकि खुदावंद की जो क्वालिटी है वो पानी की भी है। खुदावंद की क्वालिटी जो है वो हमेशा की जिंदगी की भी है। खुदावंद की क्वालिटी जो है वो तमाम चीजें जो क्रिएट करता है उसके अंदर हर एक बात की क्या है, अपने अंदर वो क्वालिटी रखता है। इसलिए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जब अब्रानियों की कलीसिया को ये खत लिखता है तो वो कहता है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन। आमीन। मेरे दोस्तों,
याद रखें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, आमीन। वो रोशनी भी है और वो भस्म करने वाली आग भी है। इसलिए खुदा का पाक रूह जो है जब रसूलों पर उतरा तो वो आग की सूरत में उतरा। उसकी वजह भी हम जानेंगे कि आग ही की सूरत में क्यों उतरा। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम के अंदर हमने पढ़ा इब्रानियों के कलीसिया को जब खुदावंद का बंदा पौलुस लिखता है तो पौलुस कहता है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आग से रिलेटेड जब हम देखते हैं तो बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर हमें जो है वो बुक ऑफ एक्सोडस, जस्ट मैं रेफरेंस दूंगा, पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2 till 5 जब हम खरूज की किताब देखते हैं तो खरूज 3रा बाब उसकी 2री आयत से 5वीं आयत तक, तो वहां पर फर्स्ट टाइम जो खुदावंद ने मूसा के साथ बातचीत की, मूसा को खुदा मूसा पर जाहिर हुआ, तो वहां पर देखते हैं कि खुदा एक झाड़ी के अंदर मौजूद है। अब मूसा जो है उस झाड़ी को देखता है कि झाड़ी के अंदर आग तो है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। झाड़ी के अंदर क्या है? आग है। और जैसे ही मूसा जो है वो उस झाड़ी की तरफ आता है और झाड़ी को देखता है कि यार झाड़ी में आग तो है लेकिन वो जल क्यों नहीं रही, तो मूसा को एक आवाज जो है वो आती है, मूसा स्टॉप हियर, अपने पांव की क्या कर, जूती उतार, क्योंकि ये जगह क्या है? पाक है। वहां पर खुदावंद तेरे खुदा की हजूरी है। सो तू क्या कर, यहां पर अगर आना है तो अपनी जूती क्या कर, उतार। जो खुदा जो है इससे पहले कि मूसा को चुनता, इससे पहले को मूसा को तैयार करता, इससे पहले को मूसा को जो है वो लीडरशिप के लिए रेडी करता, खुदा उससे हम कलाम होता है, खुदा उसे दिखाई देता है किस सूरत में? आपकी सूरत में। आमीन आमीन। इसी तरह से मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम के अंदर देखते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जब पौलुस रसूल के खत को देखता है वो कहता है तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन आमीन। अब खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। अब खुदा जो है वो यस ऑफ कोर्स भस्म करने वाली आग है, लेकिन झाड़ी क्यों भस्म नहीं हुई? आग तो उसमें मौजूद थी लेकिन झाड़ी क्यों भस्म नहीं हुई? कभी हमने सोचा है कि झाड़ी क्यों भस्म नहीं हुई? आग तो उसमें जल रही है लेकिन झाड़ी भस्म क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि खुदावन जो है वो अपनी मर्जी, अपनी विल का मालिक है। खुदावन जो चाहता है वो अपने प्लान से करता है। क्योंकि अगर जो है वो उस झाड़ी को आग जो है वो भस्म कर देती तो क्या मूसा कभी अट्रैक्ट होता? कभी मूसा अट्रैक्ट होता और झाड़ी की तरफ जाता? झाड़ी जाकर लगी रहे, सड़ गई। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो खुदावंद के प्लान में नहीं था कि उस झाड़ी को जलाता। सेम उसी तरह से जिस तरह से आप देखेंगे रूह जमीन पर खुदावंद ने बहुत सारे लोगों को बनाया। अब कोई लोग जो है वो बड़े खुदावंद ने जिन्हें सिर्फ गोरे में बड़ा पसंद कर रहे हैं, चिट्टे चिट्टे गोरे गोरे लाल लाल। आमीन। जब हम फॉरेनर्स को देखते हैं, एक ऐसे भी फॉरेनर हो ना, हमें तो यहाँ पे हम भी फॉरेनर हैं। जब पाकिस्तान में या इंडिया में हम फॉरेनर्स को देखते कहते हैं गोरे आए ने, तो किसकी क्रिएशन है?
किसकी क्रिएशन है? वो खूबसूरती जो है वो खुदावन की क्रिएशन है, उसकी विल है। अब जी देखें, आमीन। मैं अक्सर इन्होंने सुनेंगे ना सुने, तो वो भी किसकी क्रिएशन है? खुदावन की क्रिएशन है। ये उसकी विल है कि जिसे वो जैसा चाहता है उसे बनाता है, जिसे वो चाहता है उसे भस्म करता है, और जिसे नहीं चाहता उसे भस्म भी नहीं करता। इधर पेंतीकोस्त के दिन जो है वो रूह कुद्दस आग की सूरत में नाज़िल हुआ भस्म करने के लिए। आमीन। मूसा को खुदा झाड़ी में दिखाई दिया भस्म करने के लिए नहीं, उसके ईमान को कायम करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। इधर पेंतीकोस्त के दिन जो है खुदावन का पाकरू आग की सूरत में नाज़िल हुआ ताकि वो क्या करे? भस्म करे। क्योंकि खुदावन के पाकराम के अंदर खुदावन का बंदा पौलुस फरमाता है कि तेरा खुदा क्या है? भस्म करने वाली आग है। मेरे अजीजों, अब वो भस्म क्या करना चाहता था? खुदावन का पाकरू क्या भस्म करना चाहता था? चूंकि खुदावन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चलता है, हमारी तरह नहीं। कितने हैं जो एवरी सैटरडे प्लान करते हैं कि सुबह चर्च जाना है? प्लान करते हैं। मैं प्लान के मुताबिक आपको जल्दी क्विकली से छोटी सी जो है वो एक आपके साथ बात शेयर करूंगा। जब मैं कोरिया में था तो कोरिया में कोरियन पता है कैसे रेडी होते हैं? उस सैटरडे को जो लोग नाइट क्लब में जाते हैं, यंग जनरेशन जो है खासकर, वो मुकम्मल तौर पर रेडी रहती है कि ओ वीकेंड आ रहा है, सैटरडे को हमने नाइट क्लब जाना है, और वो बड़ी तैयारी के साथ जल्दी जल्दी सारी रात वहां पे स्पेंड करते हैं। जो ड्रिंक करने वाले वो भी कहते हैं आज ही पी लो, कल का दिन पर मर जाना, आना कि नहीं आना। और जो चर्च जाने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन पता है कैसी होती है? हमारी तरह नहीं होती। वो लोग जो चर्च जाते हैं, हर एक शख्स मैं आपको बता रहा हूं जो खिदमत में होते हैं वो तो पूरा डे वहां पे स्पेंड करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल शख्स, एक ऑर्डिनरी शख्स जिसने चर्च जाना है, वो फ्राइडे ही को अपनी ड्रेसेस जो है वो उन्हें प्रेस करके पहले से प्रिपेयर करके रखता है। और ना सिर्फ अपने ड्रेसेस, जब वो खुदावन के घर में हदिया देते हैं, ऐसा डे वाला माहौल नहीं इंडियन पाकिस्तानी वाला, उथे गए चर्च विच वेखिया किहड़ा सब तो छोटा ते गंदा नोट कट के थैली च पाता चीज। नो, वो कहते हैं मनी डजंट मैटर हाउ मच यू ऑफर टू द लॉर्ड। आप 5 रुपए दे रहे हैं, आप 10 रुपए दे रहे हैं, आप 100 रुपए दे रहे हैं, या आप 1 रुपया दे रहे हैं, वो कोशिश करते हैं जो ऑफरिंग जो उन्होंने खुदावन के साथ कमिट किया है। क्योंकि सैटरडे संडे बैंक बंद होता है, उनकी कोशिश होती है कि जो हमने खुदावन को दे रहा है हम बैंक से नया नोट लें, वो चाहे 1 रुपया है या 100 रुपया है, वो बैंक से नोट लेते हैं, नया नोट। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਠੱਕ ਠੱਕ करके नवीं नवीं बैंक से नया नोट लेते हैं क्योंकि खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में जाना है। अगर कोई नहीं ले सका अपनी जॉब के बायस, तो वो क्या करते हैं, उस नोट को जो सबसे अच्छा उनके वॉलेट में है, उनकी पॉकेट में है, उसे आयरन के साथ प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद उसे एनवेलप में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद और उनकी कमिटमेंट है, किसी इंसान के साथ नहीं। और उससे वो फ्राइडे नाइट को अपनी बाइबल में रख लेते हैं, और जब ऑन टाइम चर्च से पहले वो चर्च के बाहर खड़े होते हैं कि चर्च का दरवाजा खुले और हम जाकर अंदर बैठे। ये प्रेपरेशन है। आमीन। हमारे जैसी प्रेपरेशन नहीं, क्योंकि आज इसीलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे मना माल्टा में, उसकी वजह ये है कि हम खुदावंद को वो ऑनर नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। जब मेरे पास्टर जो जब पाकिस्तान आए थे कहते तुसी तो यार हाले भी वो आग बालन वाले साथ होते थे, यानी कि वो आदम जो पत्थर के साथ आग जलाता है, हम इतना पीछे हैं उनसे। क्यों?
क्योंकि उसकी वजह वो कहते हैं मैंने देखा कि आपके लोग उस तरह से खुदावंद को ऑनर नहीं देते जिस तरह से देनी चाहिए। हमारे लोग जो हैं, क्यों खुदावंद ने हमें एक बुद्धिस्ट कंट्री होते हुए भी खुदा ने हमें ब्लेस किया, क्योंकि हम खुदावंद को सबसे ज्यादा ऑनर देते हैं बुद्धिस्ट कंट्री होने के बावजूद। सो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा वो चीजें भस्म करता है जो खुदावन चाहता है कि हमारी लाइफ में से भस्म की जाए। आमीन। सो खुदावन का पाकरू जो है वो उन पर नाजिल हुआ आपकी सूरत में, क्योंकि खुदावन उनकी रसूलों की जिंदगी में से कुछ भस्म करना चाहता था। आए मेरे साथ देखिए बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 उसकी 19वीं और 20वीं वर्स 19 एंड 20। जिनके पास खुदा का कलाम है वैसे शेयर कर सकते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 एंड 20। अगर आपने निकाले तो आप आमीन कह सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 एंड 20। 19वीं और 20वीं दो आयत हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। अगर आपने निकाले तो आप आमीन कह सकते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। Once again I repeat it, इस पाठ को मैं दोबारा से पढ़ता हूं। लिखा है कि शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। आमीन। वर्स 20 20वीं आयत लिखा है, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया, पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। आमीन आमीन। मैं जब इन दो आयात को जॉन की जो है मैं इन दो आयात को पढ़ रहा था, तो जब मैं वर्स 20 पर पहुंचा 19वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि शागिर्द जो हैं वो कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन दरवाजे क्या हैं? दरवाजा क्या है? बंद है। क्यों? यहूदियों के डर की वजह से। कलाम में बताता है कि यहूदियों के डर की वजह से दरवाजे जो हैं वो बंद थे, खिड़कियां जो हैं वो बंद थी। जब मैं 20वीं आयत पर पहुंचा, 20वीं आयत वर्स 20, तो वहां पर लिखा है कि यीशु जब उनके दरमियान आना मौजूद हुआ तो यीशु ने उन्हें अपने हाथ, अपनी पसली दिखाई। जब शागिर्दों ने देखा तो कलाम कहता है कि वो खुश हुए। आमीन। कितनों को क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट जानते हैं? नहीं बच्चे यहाँ वाले तो नहीं जानते, बाकी जो हैं मेरी वाली जनरेशन जानती है। बापू भाई को क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल भी। आमीन। क्रिकेट पसंद है। आज जो सबसे इंटरेस्टिंग गेम है क्रिकेट के अंदर, पता कौन सी है? 20-20। सारे लोग जो है 20-20 पसंद करते हैं, क्योंकि छक्के वाजते हैं। आमीन। जब मैं इस वर्ष पर था तब मैंने खुदावन का शुक्र किया, खुदावन तूने छक्का मारा, तूने जो है वो उन बंद दरवाजों के अंदर उनके दरमियान जब मौजूद हुआ तो शागिर्द जो है वो तुझे देखते ही वो लोग जो डरे हुए थे, जैसे ही तू बंद दरवाजों में उनके दरमियान आया, तूने कहा ये हाथ देखो, ये पसली देखो, और लिखा है कि वो खुश हो गए। आमीन आमीन। 20 वर्ष के अंदर खुदावन जो है वो छक्का मारते हैं, वो लोग जो डर के मारे बंद दरवाजों के अंदर थे, वहां पर खुदावन उनके होंठों पर खुशी की रागनियां बख्श देता है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, अब ये लोग जो हैं वो डरे हुए थे। जब हम बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखते हैं, जब खुदा उनका पाकरू उन पर आग की सी फटती हुई जुबानों में आता है, तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले
नाजिस है उसे जलाकर क्या करता है, भस्म करता है। क्योंकि कलाम बताता है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, और इसलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें क्या किया है, डर का नहीं, खौफ का नहीं, बल्कि दिलेरी का रूह बख्शा है। आमीन, आमीन। सो वो शागिर्द, वो रसूल जो यहूदियों के डर से कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ही खुदावंद के पाक रूह को हासिल करते हैं, जैसे ही खुदा का पाक रूह जो है वो आग की सूरत में उन पर नाजिल होता है, तो वो पतरस जब तक पाक रूह नाजिल नहीं ना हुआ था, तो पतरस भी पता ही कहना होगा शागिर्दां कोई बाहर कोई रोटी ले चले ना, दरवाजा बंद कर दे छेती, हो सकता है ना, डर है ना। हमें भी कई दफा डर हो, कई दफा कोई पुठा काम कर दे पुलिस का डर होता है, खासकर पाकिस्तान दे विच तो कोई चरस चुरस भरदे हो, कोई शराब, उत्थे तो डर होंदा, इत्थे तो कोई डर नहीं किसी नूं। आमीन। तो जो कोई हजे पुठा काम कर दे ये डर, दरवाजा ध्यान नाल बंद कर दे। पतरस भी माइट भी इससे पहले कि रूह कुद्दस उन पर नाजिल होता, ऑफ कोर्स वो पानी लेने जाते होंगे, कोई खाना लेने जाता होगा बाहर, दरवाजा बंद कर देना ध्यान नाल। आमीन। लेकिन वही पतरस जो डर के मारे बैठा था, जैसे ही खुदावंद का पाक रूह जो है वो उन पर नाजिल होता है आपकी सूरत में, वो सबसे पहले उनके डर को, उस खौफ को भस्म करता है, और वो पतरस जो डरा हुआ बैठा है, वो खुदावंद के फजल से, उसके जोर से उस जिंदा खुदावंद की क्या करता है, उसकी तालीम देते हुए उसकी गवाही देता है कि सुनो ऐ लोगों, तुमने उस खुदा को जिसे जो है वो तुम्हारे दरमियान आया, तुमने उसे जो है वो मसलूब किया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। जब इस बात की गवाही देता है तो कलाम बताता है पहले ही दिन कितने लोग, 3000 लोग उस पर ईमान ले आए। आमीन। उसके कलाम पर ईमान ले आए। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम सब जो है वो खुदा के पाक रूह से मामूर होना चाहते हैं। आमीन। सब जो है वो खुदा के पाक रूह से मामूर होना चाहते हैं। आज का दिन जो ईद पेंटिकॉस्ट का दिन है, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइट बी मोर देन 40 हैं। आमीन। यहाँ पे बैठे हुए मोर देन 40 वाले बैठे ने, वो लेडीज नहीं बोलो, क्या बंदे बोलो उन्होंने तो नहीं दसना के नियम बारे। आमीन। 50 वाले भी बैठे हुए हैं। प्रेज गॉड। हम सब जो हैं वो मसीही फैमिलीज के साथ बिलोंग करते हैं, हम सब जो हैं वो बैप्टाइज्ड हैं। प्रेज गॉड। जब हम वाटर बैप्टिज्म खुदावंद की उस पाक मर्जी को पूरा करते हैं, तो कई दफा बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो उसी वक्त खुदावंद के पाक रूह को भी रिसीव कर लेते हैं। आमीन, आमीन। माइट भी हमारे चर्च में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो गैर ज़बानें बोलते हैं, जो खुदावंद के रूह से मामूर हैं। तो गैर ज़बान जस्ट एक नेमत है, क्योंकि इसके अलावा भी और खुदावंद की नेमतें खुदावंद के पाक हैं। हम सब खुदावंद के रूह से भरना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो क्या करोगे, पालोगे। आमीन, आमीन। तुम मुझे ढूंढोगे तो क्या करोगे, पालोगे। मैंने एज इसलिए कहा था, एज का जो फैक्टर है मैं 10 दवा उनकी वजह से, क्यों क्या 30 साल वाले, 40 साल वाले, 50 साल वाले, क्योंकि जब हम अपनी उस एज में थे
تو چرچ میں اپنا خاص کر جتنے بھی چرچ کے پروگرام ہوتے تھے ہم ساری رات چرچ کے اندر ڈیکوریشن کر رہے ہیں, چرچ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے جب ریزریکشن ڈے پر یا ایسٹر ڈے پر ہم پہلے جو وہ کینڈلز ساری فیملی والے لے جاتے, پھر ایک ٹائم آیا اور جدو ہوکیاں نہیں وہ کی جڑی ہوں ہوتے والیاں یہ چادر رکھ دینے ٹوپیاں نہیں, اس میں مشلیں ہم بناتے تھے. ہم ساری رات 10-12 لڑکے جو ہیں ہم ساری رات چرچ کے اندر وہ صبح کے لیے ریڈی کرتے رہتے جلوس کے لیے کہ صبح ہم نے جلوس پر جو ہے سب کے لیے یہ کام کرنا ہے, جو خداوند کے نام کو جلا دینا ہے. آمین. اس ٹائم تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی لگتی, جوش کے ساتھ بھرے ہوتے تھے, ساری رات جاگتے تھے. صبح بھی سب سے پہلے چرچ میں چونکہ کوائر میں تھے, سب سے پہلے چرچ میں سب کام ٹک 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 فاسٹ. کلام کہتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے تو پالو گے. جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں, جب آپ نئے اس جوش کے اندر آپ کے اندر وہ جوانی ہوتی ہے, اسی لیے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اب جوانی کے دنوں میں اپنے خدا کو یاد کرتا ہے. آمین. تو جب آپ جوانی کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جوش ہوتا ہے, آپ خداوند اپنے خدا کو اگر پانا چاہتے ہیں تو یس آپ اس سے ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ آپ کو مل جاتا ہے. آمین آمین. بہت سارے پاک روح کے بپتسمہ کو لے لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پاک روح تو مل جاتا ہے, غیر زبانیں بھی مل جاتی ہیں, ہمارے پاس مختلف گفٹس جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن ہم وہیں پر سٹاپ کھڑے رہ جاتے ہیں, وہیں پر سٹاپ. پاک کلام میں لکھا ہے کہ کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا پھل آیا. ہم نے شاید 20 سے یا 30 سے سٹارٹ کیا تھا, ہم 35 پہ 40 پر جا کر پہنچتے ہیں. ایسی 50 والے 60 والے پاس نہیں, ایسی 40 تک روتے رہنے وہاں, 35 تک روتے رہنے وہاں, آگے نہیں بڑھتے. ہم آگے نہیں بڑھتے. ہم پاک روح کو جان چکے ہیں. ہم اس ٹائم یس ہم خداوند کو ڈھونڈ رہے تھے, ہمیں خداوند جو ہے وہ چاہیے تھا, ہمیں اس کی جستجو تھی, اور اس نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں واٹر بیپٹائز کے ساتھ ساتھ ہمیں روح القدس جو ہے وہ انعام میں دیا. لیکن اس کے بعد ہم 35-40 پر سٹاپ ہو گئے. وائے آج ہم وہ بھی جانیں گے اس کی وجہ کیوں جو ہے وہ ہم وہیں پر رک جاتے ہیں. آئے میرے ساتھ دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے بک آف میتھیو چیپٹر 6 ورس 5 and 6. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت. بک آف میتھیو چیپٹر 6 ورس 5 and 6. اگر آپ نے نکال دیا تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. Praise God. Matthew chapter 6 verse 5 and 6. خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے, اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو, کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. 6ٹھی آیت ورس 6 لکھا ہے, بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین آمین. اب خداوند کے پاک کلام کے اندر یہ پتہ کس کے الفاظ ہیں؟ متی کے نہیں ہیں. یہ الفاظ جو ہیں ڈیورنگ پریچنگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کیے. اب یسوع مسیح کہتے ہیں اور جب تم دعا کرو تو کیا کرو؟ ریاکاروں کی مانند نہ بنو, کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لکھا ہے بلکہ جب تو دعا کرے تو کیا کر,
अपनी कोठड़ी में जा और क्या कर। इस वर्ड पर ध्यान देना, चूंकि आगे मैं इसी पर चलूंगा थोड़ा सा। लिखा है तू अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है क्या कर, दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन, आमीन। सो क्या करना है जब हमने दुआ करनी है? क्या करना है? क्या करना है? कोठड़ी में जाना है और वहां पर क्या करना है? पोशीदगी में। खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में नो वन नोस। आपने अपने दरवाजे को बंद करना है। तो जब तू पोशीदगी में क्या करेगा? दुआ करेगा, जहां पर तेरा कांटेक्ट जो है, तेरा कंप्लीटली फोकस जो है तेरी वाइफ पर नहीं, तेरे बच्चों पर नहीं, तेरे हस्बैंड पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन एंड वन खुदावंद और तेरे खुदा के दरमियान। जब तू मीटिंग के लिए आएगा, जब तू दुआ के लिए आएगा, जब तू गुफ्तगू के लिए आएगा, जब तू बातचीत के लिए आएगा, तो तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे क्या करेगा? बदला देगा। जब तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों कर रूह कुद्दस नाम में ना देगा। आमीन, आमीन। वो चाहता है कि हम पहले कोठड़ी का दरवाजा बंद करें। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आमीन। कोठड़ी का दरवाजा खुला तो यह दरवाजा बंद। हम पसंद करते हैं यहां पर आकर लंबी सारी दुआ की थी जाए। यहां पर हम सब जानते हैं हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 2 आवर्स मैक्सिमम, 2.5 आवर्स। शुक्रगुजारी की दुआ कहा जाए तो पता नहीं किधर तुर जाने हो। सॉरी टू से, कलाम के लिए दुआ करने के लिए कहा जाए, कलाम में दुआ करेंगे ऐसी फिर जन्नत पे पहुंच जाने। इसराइल ने खुदा सलाम की नहीं, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखी। कलाम कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपने क्या कर? अपने आप को रयाकारों की मानो दुआ ना कर, चूंकि वो चाहते हैं लोग उन्हें देखें कि बड़ी लंबी दुआ की थी, बड़ी रूना परी दुआ की थी। First you have to listen very be careful for which purpose they tells you have to pray, you have to lead the prayer। हमें इस बात को जानना है कि किस पर्पस के लिए कहा गया। लंबी दुआ करें, जरूर करें। कब? कोठड़ी में जाकर, जब आप और आपका खुदावंद आपकी दुआ को सुनने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन। हम कोठड़ी के दरवाजे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? रसीदो याद रखिए कि दरवाजा बंद करना क्यों जरूरी है। अब मैं दरवाजे पर बात करूंगा कि दरवाजा क्यों बंद करना जरूरी है। ये सिर्फ मत्ती ही की इंजील के अंदर है या हमें कहीं और पर भी जिक्र मिलता है। अब मेरे साथ देखिएगा 2 किंग्स दूसरा सलातीन उसका 4था बाब उसकी पहली 7 आयत क्विकली जरा प्लीज निकालिएगा। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 till 7। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब उसकी पहली 7 आयत। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 till 7। जी कोई भी क्विकली इन 7 आयत को पढ़ सकता अगर आपने निकाल लिया क्विकली प्लीज। और अंबिया जातों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था, तो अब कर्ज हुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आयत ले
और वो बर्तन खाली हो और छोटे बर्तन ना लेना, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। तो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अपने साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तुम और तेरे फर्जंद गुजरान करें। Amen. अब इस स्टोरी से सब वाकिफ है। आमीन। जो सेकंड किंग्स के अंदर पढ़ी गई, यहां पर हम देखते हैं कि अंबिया ज़ातों की बेवाओं में से, अंबिया ज़ाते वो हैं जो खुदावंद की खिदमत करने वाले थे, जो हैकल में खुदा की खिदमत करते थे, जिन्हें आज के दिन आप काहन भी कह सकते हैं, पास्टर्स कह सकते हैं, एवेंजलिस्ट कह सकते हैं, डीकन कह सकते हैं, जो भी लोग जो हैं वो खुदा के घर में खिदमत करते हैं। अंबिया ज़ातों में से एक बेवा जो है, एक औरत जो है, वो अलीशा के पास आती है, मर्द खुदा के पास। वो कहती है कि तू जानता है तेरा खादम यानी मेरा शौहर जो खिदमत गुजार था, क्या हुआ है? मर गया है। और तू जानता है कि मेरा शौहर जो है या तेरा खादम जो है वो खुदावंद अपने खुदा से डरता था, लेकिन चूंकि हमारा जो है वो सर्वाइव चूंकि इतना अच्छा नहीं था, चूंकि जब हम स्टोरी को देखते हैं ऑफ कोर्स उनका सर्वाइव इतना अच्छा नहीं होगा। आमीन। अब उसने क्या हुआ? कर्ज लिया। अब कर्ज आया है, चूंकि तेरा शौहर जो है वो मर गया है, मैं क्या करूंगा? अपने दोनों बेटों को क्या कर, तुम मुझे दे दे ताकि मैं उनसे अपना कर्ज जो है वसूल कर सकूं, उनसे जो है मेहनत मशक्कत कराऊं, उन्हें अपने गुलाम बनाऊं, जैसा आज भी हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। भट्टे पर अक्सर आप देखते हैं लोगों को जो नस्ल दर नस्ल कर्जों के अंदर दबे रहते हैं, और वो गुलामी ही के अंदर कई लोग इस तरह से रहते हैं, नस्ल दर नस्ल। अब यहां पर भी सेम स्टोरी है। अब अलीशा से कहता है, अच्छा मुझे बता फिर मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे पास क्या है? व्हाट यू हैव टू डू? तेरे पास क्या है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं? वो से कहती है कि तेरी लौंडी के पास एक सिर्फ प्याले में थोड़ा सा तेल है। आमीन। आमीन। अब अलीशा से कहता है कि तू क्या कर, अच्छा तू अपने घर जा और अपने हमसायों से जो तेरे नेबर्स हैं उनसे क्या कर, उनसे खाली बड़े बड़े बर्तनों को ले, उन्हें इकट्ठा कर, मैक्सिमम जितने तू कर सकती है उन्हें इकट्ठा कर। और क्या करना, जब तू बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर ले तो अपने दोनों बेटों को क्या करना, अपने साथ कमरे में ले जाकर क्या करना, दरवाजा क्या करना, दरवाजा बंद करना। वही बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील में कही कि जब तू क्या करे, दुआ करे तो अपनी कोठड़ी का दरवाजा बंद कर, तो तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बरकत देगा। आमीन। बदला देगा, बरकत देगा। अब अलीशा भी उसी खुदावंद की मर्जी को, उसी पैटर्न को लेते हुए चलता है। अलीशा कहता है कि जब तू बर्तन इकट्ठे कर ले तो अपने बेटों को क्या करना, अंदर लेना और दरवाजे को बंद कर देना, और फिर उन खाली बर्तनों में तू क्या करती जाना, तेल को उंडेलती जाना, और खुदावंद का फजल जो है वो उस पर होता रहेगा, और वो बरकत पर बरकत क्या करेगा, उसमें बरसाता रहेगा, और वो बर्तन जो है वो भरते चले जाएंगे। आमीन। आमीन। मैं जब इस रेफरेंस को देख रहा था, मैं कहा यार अलीशा ने बरकत देती, दरवाजा बंद करवा देता है, तेल चोरी का सी, तेल ते चोरी का नहीं सी। आमीन। तेल चोरी का नहीं था, वो बरकत थी, वो ब्लेसिंग थी जो खुदावंद के बंदा के थ्रू उन पर जो है वो हुई,
اور خداوند کے کلام کے اندر ہمیں جب برکت چاہیے ہم کیوں جو ہے وہ اسپرچل طور پر رک جاتے ہیں؟ ہم کیوں روحانی طور پر آگے نہیں بڑھتے؟ اس کی وجہ چونکہ ہم جو ہے یہاں پر تو ہمیں آدھا گھنٹہ دعا کرا لو، 1 گھنٹہ دعا کرا لو، تو کمرے بند کمرے میں ہم دعا نہیں کرتے. بند کمروں میں دعا ہم نہیں کرتے. ہم کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر دعا کرنا پسند نہیں کرتے. ہم وہاں پر ٹائم سپینڈ نہیں کرتے جہاں پر آپ کے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہے. اوتھے سے کہنا نہیں خدا دے پاک رو تے کام ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ سانوں تے ایتھے روک دتا جاندا ہے. 2 منٹ دی دعا کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ سچویشن کو دیکھنا ہے. جب آپ پرسنل کمٹمنٹ کے اندر خداوند کے ساتھ ہیں وہاں پر آپ کے پاس کوئی بندش نہیں ہے. آپ اپنا پورا دل خداوند کے سامنے کھول دیں. آمین آمین. اسی طرح سے جب ہم دوسرے ریفرنس کے اندر دیکھتے ہیں جو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر ہمیں ایک اور ریفرنس جو ملتا ہے بک آف مارک چیپٹر 5 ورس 39 till 41. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں گے تو پلیز last reference ہے book of Mark chapter 5 verse 39 till 41. مرکز رسول کی معرفت دیکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 39ویں آیت سے 41ویں آیت تک. Mark chapter 5 verse 39 till 41. جی اگر آپ نکالے تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی کوئکلی پڑھ سکتا ہے. بھائی پرویز آپ پلیز پڑھ دیں اگر آپ نے نکالا. مارک چیپٹر 5 39 41. یا اگر کسی اور نکالا تو آپ پڑھ دیں. جی کوئی بھی. اتے اندر جا کے انہوں نے آکھیا تسی کانوں رولا پاندے ہو اتے روندے ہو. کڑی مری نہیں پر ستی ہوئی ہے. تا او اس اتے ہسے پر انہاں سبنا نو باہر کڈ کے کڑی دے ماں پیو اتے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے جتھے کڑی سی اوتھے اندر گیا اور اس نے کڑی دا ہاتھ پھڑیا اتے اس نو آکھیا تلیتھا کومی جس دا ارتھ ہے اے کی کنیا میں تینوں آکھدا ہاں اٹھ. آمین آمین. میرے عزیزو یہ ریفرنس جو بک آف مارک میں سے پڑھا گیا. تھینک یو بھائی جاب پنجابی کے لیے لو یو. پنجابی ہے نا سی. خداوند کے پاک کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ تم کیوں غلم چاہتے ہو. یائر کی بیٹی جو مر گئی ہے اب یائر ویٹ کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کیا کرے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جائے. وہ بچی جو موت کے قریب ہے اب اس نے یسوع کے لیے سن چکا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو بیوہ کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو 5000 لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو طوفان کو حکم دیتا ہے تو وہ تھم جاتا ہے. اب یائر اس کے پاس آیا کہ استاد میرے ساتھ میرے گھر چل چکے میری بیٹی کیا ہے مرنے کو ہے. اسے میسج ملتا ہے اس کے گھر سے ایک نوکر آتا ہے کہ اب استاد کو تنگ نہ کر چونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے. یسوع بھی اس آواز کو سنتے ہیں. یسوع نے سے کیا کہا خاطر جما رہا. آمین. ایمان رکھ کچھ نہیں ہوئے گا. پریز لارڈ. چونکہ زندگی اور موت تو میں ہوں. آمین آمین. یائر کو میسج ملتا ہے کہ تیری بیٹی مر گئی ہے استاد کو تنگ نہ کر. اب جب یسوع مسیح جو ہیں یائر کے گھر پہنچتے ہیں تو رشتہ دارہ کی کیتا ہے رشتہ دارہ کی کیتا تھے. پنجابی کس طرح روتے ہیں انجی کو روندہ ہے نا جو یائر کی شاید ہو سکتا ہے بہن ہو یائر دی بیوی دی پہنی یعنی کہ اس کڑی دی ماسی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خاص رشتہ دار پہن کے روتے ہیں. آمین. اب وہاں پر رونا ہے. اچھی اچھی لوگ رو رہے ہیں زور کے ساتھ رو رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہتا ہے کہ شور کیوں کرتے ہو. لڑکی جو ہے وہ مری نہیں بلکہ کیا ہے سو رہی ہے.
अब जो लोग वहां पर डेफिनेट सारे यंग सियाने भी बैठे होने थे, कई ने नबस चेक कर ली नहीं है, मर गई। अब तो हारिया कई नक के हाथ रख लो रख के भेज देना है, मर गई। अब यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। आमीन। हम यीशु मसीह दे संडे ने हम कईयां दे जरा शुदाई नहीं ना की बंदा अजीब जिहा, ਅਸੀਂ कहना मरिया सी पागल मां, इतने बड़े बंदे तो रोन डे मां। कितने लोगों की सोच में आया होगा। आमीन। वहां पर जो लोग डेफिनेट वहां पर सीनियर लोग भी होंगे, तजर्बाकार लोग होंगे, सारे आप बच्चे थोड़ा बैठे हैं सब लोग से। अब वो रो रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं वो की जोर पाया क्यों रोते पे जे, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। लिखा है कलाम के अंदर वो उस पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अब यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह जो है सिर्फ लड़की के पेरेंट्स को, लड़की के माँ बाप को, और वहां पर लिखा है क्या करते हैं, अपने साथियों को। यीशु के कितने साथी सी पता है, कितने सी पता है, वो बोल दो यीशु के कितने सी क्यों हो गया, पैसा बड़ा नंबर शाक ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ 12 ਕਿੰਨੇ 70 है भी नहीं याद कि सर शाक जी पहले कितने सन यहूदा ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਦੋਂ तक है सी 12 ही सन। चर्च यीशु मसीह जो है जब उस घर में जहां पर वो लड़की मरी पड़ी है वहां पर पहुंचते हैं, जस्ट उसके पेरेंट्स को लेते हैं, और कलाम बताता है कि वो क्या करते हैं, अपने साथियों को लेते हैं। और जब आप बुक ऑफ लूक के अंदर देखते हैं, लूक रिमेंबर चर्च, लूक और रसूल जो है वो उन साथियों को भी जिक्र करता है। लूक चैप्टर 3 वर्स 51 घर जाकर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जस्ट रेफरेंस दे रहा हूं। लूक चैप्टर 3 वर्स 51, वहां पर सिर्फ 3 शागिर्दों को यीशु मसीह लेते हैं, पतरस, यूहन्ना और याकूब। सेम उसी तरह से जिस तरह से बागे गतसमनी के अंदर 3 शागिर्दों को लिया, मेरे साथ चलो ताकि हम दुआ में ठहरे। जहां पर उन्हें जो है वो मूसा, एलिया नजर आता है, जब पतरस कहता है खुदावन तेरे डेरे ऐसी बनाई है। आमीन। सब 3 साथियों को लेते हैं, बाकी 9 बार। आमीन। कितने लोग हैं अंदर, कितने लोग हैं, खुदावन यीशु मसीह, बच्ची के पेरेंट्स, बच्ची के पेरेंट्स और कितने शागिर्द, 3 शागिर्द, बाकी बार। आमीन। आमीन। क्या करो, दरवाजा दरवाजा बंद करो, ये मरी नहीं बल्कि सोती है। उससे कहते हैं तलीता कौमी, जिसका तर्जुमा है कि आए लड़की मैं तुझे कहता हूं कि उठ जा। आमीन। आमीन। दरवाजा बंद है। आमीन। जिस दिन रूह कुद्दस शागिर्दों पर नाज़िल हुआ, दरवाजा बंद था, डर था पर दुआ में थे। हैकल नहीं सी खलोते, हैकल में नहीं थे। जब तू दुआ करे तो रयाकारों की तरह नहीं, चूंकि लोग ताकि तुझे लोग देखें, बड़ी रोज दुआ करता ही। आमीन। बल्कि जब तू दुआ करे तो क्या कर, अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर, ताकि वो तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे, तुझे बरकत दे। अगर बरकत चाहिए आप वहीं पर स्टॉप नहीं होना चाहिए। जिथे मैंने बपतिस्मा जितन लिया 35% बरकत मेरी गैर जबान आ गई, 45% तक मैं तरक्की की थी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ दरवाजा ही नहीं बंद कदी कीता, दरवाजे च कदी गए ही नहीं। ਇੱਥੇ मौका मिल जाए तो जरूर कर ली है, दरवाजा नहीं बंद कर दे। शागिर्द जो थे डरे हुए थे, दरवाजा बंद था लेकिन दुआ कर रहे थे। जैसे ही रूह कुद्दस नाजिल हुआ, मैंने तुम्हें क्या किया है, दलेरी का रूह दिया है। आमीन। आमीन।
तो मेरे अजीजों, आज के दिन खुदावंद का रूह आपसे भी कलाम करना चाहता है, आपको भी भरना चाहता है, आपके डर को भी भस्म करना चाहता है। क्योंकि पौलुस कहता है कि तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन। रूह कुदस से भरना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, हाथ नीचे कर ताली मार के बता दे जो भरना चाहते हैं। भरना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब भरना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप भरना चाहते हैं तो अपने डर को भस्म करना है। रसूल डरे बैठे थे यहूदियों के डर से, छड़ गए ऐसे नहीं छेड़ते थे। इवन पतरस जो पूरी लोगों के सामने, उन लोगों के सामने उठकर वास करता है, कलाम करता है। पतरस वो था जो यीशु मसीह के पीछे पीछे तो गया, जो औरत ने कहा ना, नहीं मैं नहीं सा, बीबी मैं नहीं सा, किधर बेटे पाई जानी, मैं कितों मेरे नाल। आमीन। डर था पतरस को, आग सेक रहे, है भी नाली सी, नहीं मैं नहीं। अब वही पतरस जो डरा बैठा है, वो पतरस खड़ा होता है, यस, हाँ मैं उसके साथ था, वो जिसे तुमने सलीब दिया, हाँ वो जी उठा है। अब उसके अंदर डर नहीं है। हमारे अंदर अगर हम चाहते हैं कि रूह से भरे, तो हमने अपने डर को अपने आप से नहीं, उसके जोर से भस्म करना है। साढ़े की डर यहूदियां का नहीं गा, सानू डर है अज काम ना किया जुमा जुमे पादरी साहब किन्ना टैक्सी का काम चल रहा होंदा, तुसीं बंद कर देंदे जे, हफ्ते नूं भी बंद कर देंदे जे, तवार नूं भी बंद कर दे भाई साहब, तुसीं तो पागल ही जे। कई कहते होंगे मैनूं, मूंह ते नहीं कहते वैसे। कल वाइन प्रैक्टिस थी, मैंने 6 बजे पौने 6 गड्डी बंद, मैं कहा बंद पीटर, वाइन प्रैक्टिस से जाना है। रात 11 बजे तक मैं ड्रॉप भी किया, सबको पिक भी किया, ड्रॉप भी किया। आमीन। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दे जो उसे तेरी फिक्र है। आमीन। अपने डर को खत्म करें। साढ़े के डरे मैं ना कीता तो पूरा खत्म होएगा। डर यार कुछ बच्चियां नहीं कर जाइए, घर ले लइए, फलाना काम कर, सारे डर पड़े पे हैं। रसूलों में तो सिर्फ एक डर था, यहूदियों का, तो तुसी ते डरना भरे बैठे पे जे। मैं नहीं करांगा तवार नूं, ऐ नहीं करांगा तो किस तरह होएगा, इबादत मिस कर दियो कोई गल नहीं। तसी पता कि खुदा नूं पता ही है, साडा खुदा नूं पता ही, हो किहड़ा नहीं जानदा है। हुण काम ना करिए बच्चियां दी, डर बनाया सी। अगर रूह कुदस से भरना चाहते हैं तो खुदावंद भस्म करने वाली आग है। आमीन। जब रसूल हैकल में जाते हैं, जब भीख मांगने वाले को देखते हैं, तो उससे कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं। तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, उठ और चल फिर। आमीन, आमीन। अगर अलीशा जो है उसके कर्जदारों के लिए जब दुआ कर सकता है और बरकत चाहता है, तो तेल भरता ही जाता है, मुकदा नहीं गा। बर्तन खत्म हो गए, तेल स्टॉप होया, नहीं तो बर्तन मुक्की नहीं, मुक्की बर्तन मुक गए, बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म नहीं हुआ। आपका खुदा बरकत देने वाला खुदा है। जब आप उसके पास आते हैं, वो बरकत कर देता है, बरकत खत्म नहीं होती, बरकत नहीं खत्म होती। वो बरकत कर देता है, लेकिन जब ईमान के साथ मुकद्दस के ताबे कर देते हैं। आमीन, आमीन। यस, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, उठ चल फिर। आमीन। आज यही बरकत ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद हमें देना चाहता है। और रसूल ते भर गए, आज खुदावंद हमें भरना चाहता है। आमीन। खुदावंद आपको अपने गवाह ठहराता है कि हमारा खुदा
भस्म करने वाली आग है। आज हमने अपने अंदरों से, अपनी जिंदगी में से अपने डर को, अपने खौफ को, अपनी हसद को, किन्ने हसद एक दूजे नाल ऐने दो घर दे मेरे को क्यों नहीं गए ऐ वे आउंदे ही सैटल हो गए, छेती नाल ही सैटल हो गए, साशे नहीं हाल तक हुए। आज हमारे दिलों के अंदर ये सारी बातें हैं। खुदा के खाते में बड़ा खूबसूरत पास्टर अनुस्मार का गीत है, कर भस्म तो गुस्सा और बदी, आमीन, जो हम दूसरों के साथ रखते हैं, सब बदकारी और मैं कशी, भर अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ तू ही तू, आमीन आमीन। आए सब अपनी जगह पे खड़े हो और शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। हालेलुया। सब 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 अपनी जगह पे खड़े हो, सब खड़े हो और शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जिस तरह से ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद का पाक रूह आपका रसूलों पर ठहर गया उस 120 की जमात पर, इसी तरह से खुदा का पाक रूह आज आप पर ठहरना चाहता है। खुदावंद आज वो हर बदी को, आज हर उस नफरत को, आज हर उस गुस्से को, आज हर उस बात को, हर उस डर को जो हमारी जिंदगियों में है, जो हमें पाक रूह से भरने नहीं देता, आज खुदावंद उस डर को भस्म करना चाहता है। जो कलाम के अंदर लिखा है कि तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है। आए उसके ताबिया कर दे, हरे 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 ताबिया करे, हरे ताबिया करे। हालेलुया। हरे उसके ताबिया करे। हालेलुया। प्रेज प्रेज प्रेज। शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। सब 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 शुक्रगुजारी करें और अपने आप को पाक रूह का ताबिया करें। अगर उसने आपसे कलाम किया है